Good morning, class 11 students. Welcome back. In the last video, we have completed resolution of vectors at the end, and I told you that video becomes too lengthy, so I missed a small part. That is application of resolution of vectors. हम resolution vectors को क्यों पढ़ते हैं? इसका क्या जरूरत है in practical life? We are unaware of it, but we use day-to-day life things. Okay, for example, crane. What is a crane? क्रेन क्या करता है? क्रेन गाड़ियों को टांग के लेके जाता है, ठीक है ना, पुल करके लेके जाता है। पुल क्यों करता है? पुश करने वाला क्रेन क्यों नहीं है? ऐसे ही इसके पीछे फिजिक्स है। बिहाइंड दिस वी हैव फिजिक्स। व्हाई वी पुल समथिंग, व्हाई नॉट पुश समथिंग? गेट्स इन अ डोर, ओके, किसी स्टोर में जाओगे, देश में लिखा होता है पुल कर, बट व्हेन यू ट्राई टू पुश इट, वो काम नहीं करता, बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है। पुश से भी गेट खुलता है, बट we have to apply more force. So why it's only pull? Why not push? That you need to understand. Next, we do every day, every time walking. हम कैसे चलते हैं? मान लो ये मेरा पैर है, क्या हम ऐसे करके चलते हैं? Of course not. We walk like this. तुम चल के देखो, तुम ऐसे करके एक फोर्स लगाते हो, ओके, फोर्स ऐसे करके चलते हो, ऐसे करके चलते हो, तुम ऐसे करके नहीं चलते। The whole foot is not flat on the floor. The foot bends like this. Then we walk. So this bending also have some concepts. Okay, so those things you need to understand now. See, first of all, walking of a man. When a man walks, what happens? ऐसे करके ऐसे फोर्स लगाएगा. That means he is applying some force in this direction. Ground में. This force is not straight. ऐसे करके ऐसे नहीं चल रहा, वो ऐसे करके चल रहा है. This is applying force in this direction. Because of this inclined force, which is making some angle with the horizontal, it has two components: F cos theta, F sin theta. ठीक है ना? ये फोर्स का दो कंपोनेंट लगाता है. ओके, ये जो फोर्स में लगा है वो अर्थ में लगा है. ओके, अब मैं डायरेक्शन को चेंज करने वाला हूँ. देखो ध्यान से, क्यों चेंज करने वाला हूँ? अर्थ में लगाएगा तो अर्थ ऑपोजिट एक फोर्स लगाएगा. एवरी एक्शन हैज अ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो इसका दो कंपोनेंट ऐसे निकलेगा. यू अंडरस्टैंड? सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस फिगर. अब वी अंडरस्टैंड व्हेन वी वॉक, वन फोर्स इज एक्टिंग towards the ground which we apply, and the ground exert an equal force in opposite direction. That is this force. This has two components. Now this component is balancing the weight of the body. इसलिए हम गिरते नहीं हैं चलते चलते. लेकिन छोटे बच्चे गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो ये फोर्स लगा ही नहीं पाता ठीक से, तो उसको रिजल्ट वापस बैक फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता, जिसके कारण वो चल नहीं पाते हैं. उनको आता ही नहीं है कि पैर बेंड करके चलना है. They don't know only, so they learn with time. Okay, so this is the force which is helping the man to stand while walking. ऐसे करके चल रहा है आराम से. As well as this is the force F cos theta is helping the man to walk in forward. So you need to understand two things. By resolution, we understand that this component of the force balance the weight and helps in standing. Okay, and this component helps in walking front. Okay, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? Resolution of forces है. Next, this is quite interesting. I told you which is easier, push or pull. Now we'll understand that why we always try to pull something. Why not push something? Pushing something becomes quite difficult. Push something becomes easy. Okay, देखो आप. For example, this is the body. I'm noting a body with a circle. मैंने इसको ना push किया, तो मतलब ऐसे करके फोर्स लगाऊंगा. लेकिन अगर मैं इसको पुल करूं तो ऐसे करके फोर्स लगाना पड़ेगा, टांगना पड़ेगा, दैट इज पुलिंग, और धकेलना पड़ेगा, दैट इज फॉर पुश. ऐसे करूंगा, बॉडी पुश किया, ऐसे करूंगा तो पुल किया. सो दिस इज द पुश फोर्स. Again, this force is making some angle, so it will have two components. One is F cos theta, and that is F sin theta. Okay, as well as the weight of the body is also acting downward, mg. So what is happening? See, when I push your body, mg तो एक वेट लग ही रहा था, साथ में और एक कंपोनेंट जो नीचे की तरफ लग रहा है.
दैट मीन्स इसका वेट बढ़ जाएगा. दैट मीन्स द apparent weight, actual weight is mg, apparent weight is a force acting downward. Force acting downward. तो फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड कितना है? F sin थीटा प्लस mg. दैट मीन्स वेट इंक्रीजेस इन केस ऑफ अ पुश. वेट बढ़ गया क्योंकि वेट के साथ और एक फोर्स नीचे लग रहा है. बट इस केस में देखो, मेकिंग सम एंगल थीटा, इट विल हैव F cos थीटा दिस डायरेक्शन, और इस तरफ क्या हो जाएगा? F sin थीटा, और वेट नीचे लग रहा है. अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन हियर? mg. Here now apparent weight. What is apparent weight? The force acting downward. Net force acting downward. अब एक फोर्स नीचे लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड क्या होगा? नीचे माइनस ऊपर. वेक्टर कॉन्सेप्ट. One force is acting downward, other force is acting upward. So what is the net force downward? नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. स्ट्रेट लाइन केस है, बड़ा माइनस छोटा, और नीचे की तरफ निकालना है, नीचे वाला माइनस छोटा, ऊपर वाला. ओके, तो इस केस में क्या हुआ? वेट डिक्रीज हो गया. देखो कैसे? इट इज mg माइनस एप्सिलॉन थीटा, इसमें mg प्लस एप्सिलॉन थीटा. इसमें वेट इंक्रीज हो गया, इसमें वेट डिक्रीज हो गया. सो विच इज इजियर? देयरफॉर यू कैन राइट इन केस ऑफ पुल, ये खुद से लिख लेना, इन केस ऑफ पुल weight of the body decreases, hence pull is much easier than push. Okay, but ऐसा components तभी निकलेगा ना जब मैं कुछ एंगल से खींचूंगा या एंगल से पुश करूंगा. तो अगर बॉडी में ऐसे पुश किया और ऐसे पुल किया, मेकिंग नो एंगल, देन बोथ आर इक्वल. दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर मैं पुश करूं और पुल करूं. But normally we don't put force perpendicular to the body surface. This is the body surface. Perpendicular to body force नहीं लगाते हैं. Always making some angle लगता है. कभी किसी चीज को टानोगे तो किसी रोप लेके टानोगे तो वो हर टाइम कुछ एंगल से आएगा. तो रियल लाइफ सिचुएशन ये होता है. लेकिन अगर हम पुश और पुल दोनों परपेंडिकुलर टू सरफेस लगाए, परपेंडिकुलर टू बॉडी सरफेस लगाए, तो दोनों पुश और पुल सेम होता है क्लास. ओके, let's go for the next, a very important topic, that is scalar product. Okay class, now see the next topic which is very important. What is scalar product of two vectors or dot product? Dot product or scalar product same होते हैं. Now see when you deal with vectors, अगर मैं बोलूं a b, this is a into b, a dot b, इसको डॉट ही पढ़ना है. A into B, इसको into नहीं क्रॉस पढ़ना है. They all are different class. Okay, these two are same. Okay, लेकिन क्रॉस एंड डॉट are different. जैसे 2 into 3 6 होता है, 2 into 3 6 होता है. वैसे वेक्टर में नहीं होता है. अगर डॉट होगा क्रॉस होगा, they are two different things. Clear? दोनों अलग अलग कहानी है, दोनों सेम नहीं होता है. Okay, so we need to understand what is dot product and what is cross product nicely. So dot product मतलब डॉट होगा, also called as scalar product. Scalar product क्यों बोलते हैं? Listen carefully. First point, a vector dot b vector. फॉर्मूला है mod of पहला वाला वेक्टर, mod of दूसरा वाला वेक्टर into cos theta, where theta is the angle between a and b. The angle should be such that both a and b should be going outward and both a and b should be coming inside. That is a vector dot b vector. Now see A vector is a vector quantity, it's a vector quantity. But answer क्या है? Magnitude of a vector को मैं a लिख रहा हूँ, magnitude b vector को मैं b लिख रहा हूँ cos theta. कोई यूनिट वेक्टर नहीं आया ना यहाँ पे साथ में. That means it is not a vector, it's a scalar quantity. यूनिट वेक्टर जब तक नहीं आएगा, that means direction, there is no direction. Okay, that means it's a scalar quantity. इसलिए इसको scalar product करते हैं, बोलते हैं. दो वेक्टर्स लिया, डॉट किया, आंसर स्केलर आया. ये क्वेश्चन पूछता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, जो कि मैंने बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे नोट बना के खुद से लिख लोगे. व्हाट इज स्केलर, व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज व्हेन वी डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द आउटपुट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. क्लियर? सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट. नाउ दिस इज वन वे टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट इफ यू नो द एंगल, इफ यू नो द मैग्नीट्यूड्स. बट इफ द वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, a1 i cap, a2 j cap, a3 k cap, a vector, b vector, b1 i cap, b2 j cap, b3 k cap, वेक्टर फॉर्म में दिया है. यहाँ पे क्या था? मैग्नीट्यूड था और एंगल देना पड़ेगा. देन यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे. बट अगर दो वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है
आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है. देन हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट? आई का कोफिशिएंट इंटू कर दो a1 b1 प्लस जे का कोफिशिएंट इंटू कर दो a2 b2 प्लस के का कोफिशिएंट इंटू कर दो a3 b3. बस खत्म. आई जे के गायब. Okay, so this is the second way to find, try to understand when to use what. Don't get confused. Huh? We use this way to find the dot product when the magnitudes and the angles are given to you. But we use this way when the vectors are given in Cartesian form. That is vector form. That is IJK form. Then we use this method. Very easy. I coefficient multiply, JJ coefficient multiply, KK coefficients multiply. Coefficients को multiply करके लिख दो add के form में. हो गया. Next. Any question angle between two vectors asks. कोई भी क्वेश्चन में वेक्टर्स पे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा है. ओके, वी ऑलवेज गो फॉर डॉट प्रोडक्ट. हम ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स. क्वेश्चन बोला नहीं जाएगा, इन द क्वेश्चन इट वोंट बी मेंशन दैट फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. दे विल से फाइंड द एंगल. So if they say find the angle between two vectors, we can find the angle between two vectors using only dot product. Okay, so that I have written here. Any question angle between two vectors asks, always go for dot product. कैसे? You don't have to remember this formula. तुम बस तरीका समझो, क्योंकि ये सब चीज तुम्हें पता है पहले से. We know a dot b is ab cos theta. We know how to find a dot b. We know how to find if a vector is given in Cartesian form. We know how to find its magnitude. You know how to find a. You know how to find b. What is a? Magnitude of a vector. Under root a1 square plus a2 square plus a3 square. What is b? Magnitude of b vector. Under root b1 square plus b2 square plus b3 square. You know this how to calculate. You know this how to calculate. And you know how to calculate dot product. तो फॉर्म से cos थीटा नहीं आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दिखाया है वो. ये रट्टा मत मारने बैठ जाना, ठीक है? Don't mug up this line. This is just useless line. You don't need to mug up this whole formula. You only have to remember this formula. A dot b is ab cos theta. Okay, and you have to remember whenever some angle between two vectors asks, you have to use dot product. यहां से cos थीटा निकालना, मतलब ये और ये पता होना चाहिए. ये निकालने का तरीका पता है, mod of a and b पता है मुझे कैसे निकलता है. You can get the value of cos theta. Clear? Again I am saying, don't mug up this formula. Try to use the concept. We know a dot b is ab cos theta. a निकालना आता है, b निकालना आता है, a dot b निकालना आता है, सब्स्टिट्यूट करो, cos theta आ जाएगा. Okay? Next. फोर्थ पॉइंट, यूनिट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट. दो यूनिट वेक्टर का अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट करूं तो क्या होता है? सी आई डॉट आई फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर. फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इज आल्सो आई कैप इनटू कॉस एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स कॉस 0. आई एक्स एक्स की तरफ एंगल कितना होगा? 0. दोनों एक्स है, 0 डिग्री. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? 1. What is magnitude of I cap? Unit vector का magnitude 1 होता है, we know already. What is cos 0? 1. The answer is 1. So when I do similar unit vectors dot product, the answer is always 1. I dot I, J dot J, K dot K is 1. So if you forget this line, normally तुम्हें ये line याद करके रखना पड़ता है. But if you forget, you can calculate in this way. This is a backup file. Clear? अगर मैं अलग-अलग unit vectors को multiply करूँ, I dot J करूँ, again formula of magnitude of first vector, magnitude of second vector, cos इनके बीच का angle. I is x, j is y. What is the angle between x and y? 90, cos 90. Magnitude of I cap is 1. Magnitude of j cap is 1. What is cos 90? 0. The answer is 0. That means if I do different unit vectors dot product, the answer is 0. I dot j, j dot k, k dot k. अगर ये अलग अलग है, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. Okay. Now the next a very important point. अगर मैं a dot b करूं या b dot a करूं, दोनों आंसर सेम है. क्यों? Because it's a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी में किस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन है ही नहीं, तो इट डजंट मैटर टू मी. अगर मैं ए डॉट बी करूंगा, आंसर ए बी कॉस थीटा आएगा. अगर बी डॉट ए करूंगा तो बी ए कॉस थीटा आएगा. सो ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों बराबर है. 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों सेम होता है. ओके, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी ना, दैट्स व्हाई यू एनीवे यू डॉट मेक द डॉट प्रोडक्ट दे आर इक्वल. क्लियर? नेक्स्ट, जैसे यहां पे मैंने क्या बोला, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछे तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है. वैसे ही कोई दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, इफ आई नीड टू प्रूव टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी यूज डॉट प्रोडक्ट. ठीक है? कैसे? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाउ टू प्रूव? ओके, हाउ टू प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर? क्या करो, उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूफ कर दो. ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना मेरे को.
डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, जीरो आएगा। और अगर गिवन है परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो लेके काम करो, अगर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो प्रूफ करो, अगर गिवन है तो इसको लेके काम करो। क्लियर ना? यहां से कैसे प्रूव होगा दैट एंगल इज 90 डिग्री? ए डॉट बी जीरो प्रूफ हो गया मान लो, तो वी नो व्हाट इज ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। नाउ समथिंग इनटू समथिंग जीरो आया, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा तो कॉस थीटा जीरो होगा। ए तो एक वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। बी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, समथिंग विल गेट, सो व्हाट इज लेफ्ट विद cos थीटा जीरो। जीरो कब आता है? cos 90 when theta is 90 degree. So from this is very important concept with respect to numerical, and it changes, okay, everybody. Sometimes it's given it is perpendicular, then you use this expression. Sometimes you need to prove it is perpendicular, then you have to do all things. You have to prove a dot b zero, and then from there you have to show these things, and from there you will get theta 90. Because this is very important to show this up. Okay, you have to show that a cannot be zero, b cannot be zero, we left with cos theta zero, from this theta equals to 90 degree. Okay, now the seventh point, it's a quite tricky one, listen very carefully and always ask in exam. ठीक है ना? What is projection of a vector on b vector? Projection of one vector on another vector मतलब क्या होता है? This is a vector, this is b vector. a से डॉट डॉट करके परपेंडिकुलर लाइन खींचो on b, ठीक है? b पे एक लाइन खींचो डॉट डॉट करके, तो ये यहां से आता जो वेक्टर बना ना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ a on b, ठीक है ना? OP वेक्टर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ A on B. तो अगर B से O पे चाहिए तो मतलब क्या करना पड़ेगा? मान लो ये A वेक्टर है और मान लो ये B वेक्टर है, ठीक है ना? तो अब क्या करो, B से परपेंडिकुलर खींचो A पे, तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ, दिस इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ B on A. तो जिस पे चाहिए प्रोजेक्शन, A का चाहिए B पे, A से परपेंडिकुलर खींचो B पे, B का चाहिए A पे, तो B से परपेंडिकुलर खींचो A पे। ओके, तो यहां से B से परपेंडिकुलर खींचा तो B का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, यहां पे A से B का P के खींचा तो A ऑन B, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. ओके, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. इन अदर वे अराउंड वी कैन से शैडो. मान लो यहां पे एक पेन है ऐसे करके, दिस इज अ वेक्टर A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, ठीक है ना? ऐसे करके मैं अगर ऊपर से एक पेन टॉर्च मारूं तो इसका शैडो आएगा ना इधर, ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. और फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक वेक्टर रखा, यहाँ से एक टॉर्च मारो तो इसका शैडो नहीं आएगा इस तरफ बोर्ड में, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. दैट इज एक्चुअली अ प्रोजेक्शन. ओके, नाउ वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड सो डिटेल इसे, मुझे सिर्फ समझना है कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? कैसे निकालते हैं, हाउ वी अंडरस्टैंड, ये समझो. What is projection of A on B? We understand OP vector. Now how to find OP? इसका मैग्नीट्यूड, OP वेक्टर कैसे निकलेगा? उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, OP क्या, राइट? समझ में आया इतना? तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? A का इस तरफ कितना कॉम्पोनेंट होता है? A cos थीटा. A का B पे निकालना तो A cos थीटा. A का कॉम्पोनेंट इस तरफ, cos थीटा का वैल्यू निकालो, बेस बाय परपेंडिकुलर लगाओ, वहां से आ जाएगा A cos थीटा इनटू OP कैप. किस तरफ डायरेक्टेड है? B की तरफ, दैट मींस B कैप. ये समझा? सो प्रोजेक्शन ऑफ A on B इज A on B, A cos थीटा इनटू B की तरफ, B कैप. नाउ हाउ टू फाइंड A cos थीटा? वी नो A dot B is AB cos थीटा. And what is A cos theta? A dot B by B, that is A cos theta. B नीचे आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ गया? A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. इंस्टेड ऑफ B I am writing magnitude of B vector into B cap, that is your OP vector. Don't write cross and all those things. ऐसे लिखना है, डॉट भी नहीं लगाओगे, क्रॉस भी नहीं लगाओगे यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे डॉट लगेगा, अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पे डॉट से आया नहीं. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो मुझे निकालना है प्रोजेक्शन, डोंट नीड एनी डायग्राम एंड ऑल, प्रोजेक्शन ऑफ C वेक्टर ऑन D वेक्टर. तो क्या हो जाएगा? C ऑन D, दैट इज C cos थीटा ऑन D, दैट इज D की तरफ, D कैप. C on D, C cos theta into D cap. Now how to find C cos theta? C vector dot D vector करके देख लो, that is CD cos theta. तो यहां से C dot D
by ये d will go that side, that is magnitude of d is equals to c cos theta. ठीक है ना क्लास? कैन यू सी दैट n दिख रहा है वो? हाँ, थैंक गॉड, बहुत ही कम दिख रहा है. ओके फाइन. तो ये समझ में आया? c cos theta कैसे निकलेगा? डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा, c और d से. ओके, सो हम यहाँ पे डाल दो c वेक्टर डॉट d वेक्टर divided by magnitude of d vector into d cap. So in this way we find projections of one vector on an, and this topic is very important class. बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ वेक्टर तुम्हारे एनसीईआरटी में. Actually from this topic lots of questions we need to solve. Okay, now let's go to the next point. Okay, class, now see the next part. This is actually a numerical concept. This is not a theory. Theory वो 7th number तक हो गया खत्म. If I see, if I do same vector dot a dot a, the formula क्या है? Magnitude of first vector, magnitude of second vector into cos of angle between both the vectors. दोनों same vector है, तो angle 0 होगा. So mod of a vector is mod of a. Mod of a into mod of a, mod of a whole square same है ना दोनों? Whole square आ गया. Into cos 0 is 1. So what I understood is that effect, right? Understand what I'm saying, huh? If I do same vectors dot product, that is equals to magnitude of the vector whole square. Same vector dot product. I'm not saying a dot a is mod of a whole square. I'm saying same vector dot product. Then that is equals to magnitude of vector whole square. Now, where you use this concept in numericals? Numerical concept. If you see these terms in a question, mod of a plus b, mod of a vector minus b vector, mod of a vector plus b vector. Whenever you see these terms in any questions, first of all, you cannot solve this term. इनके साथ तुम काम नहीं कर सकते. ठीक है ना? Mod of a vector plus b vector is not mod a plus mod b. ये समझ लो. Mod of a vector plus b vector is not equals to mod a plus mod b. ऐसा नहीं होता है ये. हाँ, ऐसा नहीं है. दोनों इक्वल नहीं है. साइड में लिख लेना. तो how to work with this mod? So we cannot work with this mod. We need to make it whole square. So then what you have to do? You have to make it whole square. ओके, क्या बनाना है इसको? होल स्क्वायर बनाना. आप देखो, वन वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर एडिशन, दिस विल बी अ वेक्टर, द होल थिंग इज अ वेक्टर. वन वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, वन वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, वन वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, वन वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? सो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? द सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, द सेम वेक्टर ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट. उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो. सो वी कैन नॉट ओपन दिस मॉड. We are bound to take whole square and then we need to work with it using this concept. Do you understand this line? ये कहां से आया? किसी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, किसी वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ. Now how to solve this? सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है. a वेक्टर डॉट a वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, लेकिन b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर. अब साइन के साथ करते हैं. a dot a vector, then a dot plus b vector, plus a vector or b vector, plus b dot a, plus into plus b dot b. Now what is e dot a? Mod of a whole square, same vector का dot product, mod of that vector whole square. What is b dot b? Mod of b vector whole square. Now we know a dot b and b dot a are same, so can I say this 2 into a dot b? दोनों same होता है, मैंने पढ़ा हुआ है. Okay, so this is the end of actually डॉट प्रोडक्ट का एंड हो गया ना. ओके, द वीडियो इज हार्डली 22 minutes approximately, and the next topic is the last topic, cross product. That is a huge one, so we will not start with this video. Okay, let's go for the next video. Thank you class.